Hello guys, this is our lecture number 2 on sets theory. Alright, so if you have watched the first lecture on sets theory that I had published I think the other day, in that lecture we had discussed, okay, how to distinguish between an ordinary collection and a collection which is a set. Okay, so you already know and what a collection is, right? A collection is just a bunch of objects, right? A collection is a bunch of objects. Now we shall call a collection a set. हम एक collection को set तभी बोलेंगे when a collection is a collection of well defined objects. Okay, जब हम कुछ well defined objects का collection बनाएंगे तब हम उनको उसको set बोलेंगे. That collection will be called a set then. Okay, so बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने डिस्कस किए थे कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है. फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी किए थे, लेकिन आज हम एन के कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे. जैसे कि ये देखो, आप ज़रा देख सकते हो यहाँ पर बीट 1, बीट 2, बीट 3, बीट 4, बीट 5, बीट 6. ओके, ये आपको 6 कलेक्शंस दे रखे हैं और ये 6 के 6 कलेक्शन सारे के सारे सेट्स हैं. तो आप देख सकते हो क्यों ये सेट्स है. मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा. पहला बिट जो दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, ये कलेक्शन है एंड इट इज़ ऑल्सो ए सेट. रीज़न क्या है, आप देख सकते हो इस कलेक्शन में कौन सा एलिमेंट जाएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं जाएगा. विच एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, वी कैन से फॉर श्योर. ओके, जैसे कि आपको दे रखा है कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या क्या है 1, 3, 5, 7 और 9. ओके, इनके अलावा बाकी बाहर का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं जा पाएगा. तो आप गारंटी के साथ बता सकते हो कि यही बस 5 एलिमेंट ही इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर रहेंगे. ओके, आप बता सकते हो कि 2 इस कलेक्शन में नहीं जाएगा बिकॉज इवन दो 2 इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 10, इट्स नॉट ऑड. ओके, so definitely you can say that which element belongs to this collection, which element does not belong to this collection. That is the reason why we shall call this collection as set. तो अब सेकेंड कलेक्शन को जरा ऑब्जर्व करो, लिखा है द रिवर्स ऑफ इंडिया. yes, this is also a set. The reason why should we call this collection a set, because you can say for sure which river will go into this collection and which river will not go into this collection. जैसे कि आपको अगर एक गंगा रिवर दिया जाए और बोला जाए क्या गंगा इस कलेक्शन में जाएगा, विल गंगा गो इनटू दिस कलेक्शन, इस ऑफ कोर्स गंगा विल गो इनटू दिस कलेक्शन बिकॉज गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया. बट अगर उसी बट इफ आई गिव यू a river named Nile, okay, will this river Nile go into this collection? Of course not. Anybody, everybody on earth will agree with you that this river Nile will not go into this collection. There is no way river Nile will go into this collection. That means you can say for sure which element will go into the collection and which element will not go into this collection. That's the reason why it's also a set. Similarly, bit with the vowels in the English alphabet, namely A, E, I, O, U. So this is also a set because you can say that A, E, I, O, U, only these elements will go into this set. Otherwise, suppose for example B, will B go into this collection? No. Okay, because B is not a vowel. That means the elements of this collection are well defined. They are defined like vowels are in English alphabet, well defined. Okay, well defined. Okay, next. Bit 4, you can see various kinds of triangles. You see various kinds of triangles. Is this collection a set? Of course this is a set because you see the various kinds of triangles that for example equilateral triangle, okay, equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, right angle triangle, okay, etc. Okay, all these will go into this collection. But if somebody gives you like a rectangle, will rectangle go into this collection? No. That means you can say for sure, you can categorically say which element will go into this collection and which element will not go into this collection. That is the reason why we shall call it a set. And fifth, the prime factors of 210, namely 2, 3, 5 and 7. Of course, you can say that only 2, 3, 5 and 7 will go into this collection. Other than them, no other element will go into this collection because only these are the prime factors of 210. Okay, so it is properly defined, it's well defined, okay, mathematically defined.
Next is the solution of the equation x squared minus 5x plus 6 equal to 0. This is a quadratic equation, guys, and this quadratic equation will have two solutions. One is 2 and this is 3, and this is a collection of the two solutions. That means only 2 and 3 will go into this collection. Apart from 2 and 3, no other element will go into this collection, because only 2 and 3 are the solution or the roots of this quadratic equation. Suppose somebody comes along and say, will 1 go into this collection? No, 1 will not go into this collection, you can say. Why? Because 1 does not satisfy this equation. 1 is not a solution of this equation. So when objects in a collection are well defined, mathematically defined, we will say that they are what? They are that collection is a set, otherwise not a set. So in each above each of the above example is a well defined collection of objects. Okay, so that is why we shall call them sets, right? Okay, now suppose yes, look at this example. The collection of 5 most renowned mathematicians of the world. Okay, now is this collection a set? No, this is not a set. Why? Because of the phrase renowned. Okay, because the word renowned. Okay, now what problem does the word renowned create here? You see that renowned is an abstract adjective. Okay, जो बोलते हैं ना मतलब फेमस. ओके, रिनाउंड इज अ फैंसी वर्ड फॉर फेमस. तो हम यहाँ पर 5 मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड को कलेक्ट कर रहे हैं, उनका सेट ले रहे हैं, उनका कलेक्शन ले रहे हैं. लेकिन ये कलेक्शन सेट नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप पक्के तौर पे ये नहीं बोल सकते हो कि इस मैथमेटिशियन इस सेट में जाए, इस कलेक्शन में जाएगा, और इस मैथमेटिशियन इस कलेक्शन में नहीं जाएगा. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ रामानुजन, क्या रामानुजन इस कलेक्शन में जाएगा? क्या रामानुजन हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, क्या इस कलेक्शन में जाएंगे? देखो, वर्ल्ड में तो सिर्फ 5 मैथमेटिशियन नहीं है ना, वर्ल्ड में तो बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं. तो रामानुजन उनमें से एक है. तो कोई अगर रामानुजन के मैथमेटिक्स रामानुजन से ज़्यादा किसी और एक मैथमेटिशियन को ज़्यादा पसंद करता है, तो बोलेगा वो तो इस कलेक्शन में जाएंगे, लेकिन रामानुजन इस कलेक्शन में नहीं जाएंगे. लेकिन जो लोग रामानुजन को मानते हैं कि वर्ल्ड का 5 मोस्ट मैथमेटिशियन में से एक है, तो उनके लिए रामानुजन इस कलेक्शन में जाएंगे. दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर वेदर रामानुजन विल गो इनटू दिस कलेक्शन नॉट. वी आर नॉट श्योर whether an element will go into this collection or not, and that is the reason why we shall not call this collection a set. This collection is not a set. This collection is not a set because it is not well defined. Because the criterion for determining a mathematician as most renowned may vary from person to person. See, इसका मतलब है person to person वेरी करेगा, है ना. कौन सा पर्सन किस वजह से उन एक मैथमेटिशियन को मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन घोषित करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है. पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना. तो ठीक है, तो इसका मतलब जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हुए हैं, मतलब हम बता सकते हैं कि ये मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में जाएगा, तो वो सेट है. अगर हम नहीं बता सकते कि इस ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में जाएगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे वो सेट नहीं है. ठीक है, ओके. और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आपके सेट के बारे में. तो सेट का 3 पॉइंट्स आप देख लो यहाँ पर. एक तो है कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स. दैट मीन्स you see that, for example, a collection of let me give you an example, a collection of vowels. Okay, a collection of vowels. Now a collection of vowels, इस collection में कौन कौन जाते हैं? A, E, I, O, U, right? यही 5 ही इस कलेक्शन में जाते हैं. इन 5 के अलावा बाकी कोई नहीं जाते हैं ना. तो ए आई ओ यू, इन 5 को हम क्या बोलते हैं कि ये कलेक्शन सेट है. ये तो पहले आपको जान रखना है. येस, दिस इज ए सेट. अभी हम डिस्कस किए थे, क्योंकि आप गारंटी के साथ बता सकते हो कि इसके अंदर ई जाएगा क्योंकि ई इज़ ए भावल, बट आप बता सकते हो कि बी नहीं जाएगा क्योंकि बी इज़ नॉट ए भावल.
there is no way that anybody will disagree with you. Okay, everybody on earth will say that apart from AEIU, no other element will go into this collection. That is why it is a set. अब इस सेट के अंदर ये जो AEIOU है, इनको हम इसके मेंबर्स बोलेंगे, या फिर इनको हम इसके ऑब्जेक्ट्स बोल पाएंगे, या फिर एलिमेंट्स बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये सारे वर्ड्स क्या है बेटे, सिनोनिमस है। क्या है? सिनोनिमस। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। सिनोनिमस टर्म्स मीन्स दे मीन द सेम। ओके, दे मीन द सेम, उनका सेम मीनिंग है यहाँ पर। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को लेके आप कलेक्शन बनाए हो, अगर वो कलेक्शन सेट है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स, या फिर एलिमेंट्स, या फिर मेंबर्स ऑफ दैट सेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप जरा ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC XY Z एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज बेबी इज़ बोर्न इन अ हाउस। सपोज आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसका नाम रखते हैं ना, यू नेम दैट बेबी, give a name to the baby so that you can address the baby. Okay, the baby when grows up, you can address that person. Okay, उसी तरह जब हम एक सेट बनाते हैं, सेट का भी एक नेम रखते हैं। ओके, नेम। और यहाँ पर नेम, सेट का एक नेम कोई वर्ड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस हमें क्या रखते हैं, कैपिटल लेटर रखते हैं। क्या रखते हैं? कैपिटल लेटर। ओके, सेट का नाम को हम एक कैपिटल लेटर रखते हैं। सो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC XY Z एक्सेट्रा। ओके, सो अब कोई भी एक सेट लो, उसका पहले आपको उसका नेम रखना है। और नेम क्या होता है कि कोई भी एक रैंडम कैपिटल लेटर आप असाइन कर दो उसको, तो वो हो जाएगा उसका नेम। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। और रिमेंबर कि उसका नेम को हम सिर्फ कैपिटल लेटर ही देंगे। सेट्स आर डिनोटेड बाय ओनली कैपिटल लेटर्स। ओके, यहाँ पर यूजुअली लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, और कैपिटल लेटर के अलावा स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करते सेट के नेम को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC XY Z एक्सेट्रा। जैसे कि हम सेट के नेम जो होता है ना, वी डिनोट ए सेट बाय ए कैपिटल लेटर लाइक ABC XY Z। उसी तरह सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, अगर वो लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं कोई एलिमेंट, तो उसको हम लोअर केस लेटर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, XY ऐसे करके हम लिखते हैं। कभी हम मतलब यूजुअली ऐसा ही करते हैं। जैसे कि सपोज एक सेट हम बोलेंगे, सेट ऑफ एक सपोज मैं बोलूँगा एक कलेक्शन ऑफ, मैं इसमें बोलता हूँ, वाइट बोर्ड में बोलता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँगा ए कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabet, right? You have to mention English alphabet because you see there are other languages also and they also have their own vowels. So collection of vowels of English alphabet अगर ये collection में बोलता हूँ, और आप पहले तो डिसाइड करो क्या सेट है। हाँ, ये सेट है। तो सेट अगर बनाया उसका एक नेम रखते हैं ना, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं उसका नाम भी रखता हूँ। आप उसका नाम ए भी रख सकते हो, कैपिटल है, लेकिन जो भी रखो कैपिटल लेटर रखना है। और इसके जो एलिमेंट्स है ना, इसके जो एलिमेंट्स वो क्या क्या हैं, AEIOU, हाँ। तो आप ये जो वावेल्स को स्मॉल लेटर के द्वारा लिखो। आप ऐसे मत लिखो कि AEIOU, हालांकि कुछ गलती नहीं है ऐसा लिखने में, लेकिन फिर भी हम कन्वेंशनली ऐसे ही लिखते आते हैं कि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अगर वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं तो उनको हम गारंटीड क्या करते हैं, स्मॉल लेटर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें सेट के अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इफ़ A is an element of a set A, we say that A belongs to A, है ना। The Greek symbol this is called epsilon, okay, is used to denote the phrase belongs to। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, उस एग्जाम्पल क्या लिखा है, ए कलेक्शन ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो 5 ही वावेल है, AEIOU। तो ये पाँचों के पाँचों इस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं, मतलब इस कलेक्शन में जाते हैं ना, दे बिलोंग टू दिस कलेक्शन। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट। ओके,
हम इसको अगर वर्ड में लिखें, जैसे कि हम नहीं लिखते वर्ड में कभी, ए बिलोंग्स टू वी, ओके। वी हमारा जो सेट का नेम है, एलिमेंट है, उसको बिलोंग करता है। तो अगर उसको सिम्बॉलिकली लिखें, सिम्बॉलिकली, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, स्मॉल ए, दिस सिंबल, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन वी। इसका मतलब है ये जो सिंबल एप्सिलॉन है, दिस represents this phrase belongs to, okay. So here for example I belongs to V, I भी सेट को बिलोंग करता है, उसके अंदर जाता है ना। उसी तरह हम अगर बोले कि कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, एनी एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वर्ड में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे ए डज, आई मीन सपोज बी, ओके, बी हियर, ओके, लेट्स से बी, वी नो दैट we know it that B does not belong to this set, right? We know it that B does not belong to V। क्यों? क्योंकि B भावेल नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिखेंगे, B does not belong to V। तो ये जो सिंबल एप्सिलॉन है, अगर खाली ऐसे रखे तो डज, वो बिलोंग्स टू बोलता है। अगर उसको एक उसको क्रॉस कर दे, एक स्लैश, एक टिल्टेड क्रॉस लगा दे, तो ये बन जाता है क्या, डज नॉट बिलोंग टू। क्या बन जाता है, डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब बी इस सेट में नहीं जाता है, इस सेट में बी नाम के कोई एलिमेंट है ही नहीं। आप समझ रहे होंगे है ना, धीरे धीरे। तो नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप देख लो, ओके ओके, हाँ, जैसे कि अगर हम ये कलेक्शन की बात करें कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ओके, सपोज़ मैं आपको बोलूँ 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं, मैं अगर आपको कलेक्शन बोलूँ कि सपोज़ उसका नाम रखते हैं कैपिटल पी, जो भी आप नामकरण रखोगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर रखोगे, सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर दिया जाता है, ओके। सो इट इज़ सपोज ए सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो आप क्या करो, 30 के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, है ना। 30 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 30 को अगर स्प्लिट करें तो होता है 2 × 15, फिर अगर 15 को स्प्लिट करें 3 × 5, तो 13 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 और नॉट, 30 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 और नॉट, ओके। सो दीज आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स दैट 30 हैज़, राइट। सो इस सो 2 एक है, 3 एक है, 5 एक है, इस सेट में बिलोंग करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू पी, 3 बिलोंग्स टू पी, 5 बिलोंग्स टू पी। बट इसके अलावा बाकी कोई प्राइम फैक्टर या फिर कोई भी अदर दूसरा नंबर इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि 7 डज नॉट बिलोंग टू पी, 7 इस कलेक्शन को, या फिर यहाँ पर ये सेट है, 7 इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ये इस सिंबल का मतलब है, ठीक है। इस सिंबल दिखाता है कि 7 इस, क्योंकि 7 30 का एक प्राइम फैक्टर नहीं है ना। ये आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने ये बोले कि आप जब भी एक सेट बनाते हो, है ना, जब भी एक सेट बनाते हो तो उसका नामकरण किया जाता है, उसको डिनोट कर, उसको एड्रेस कैसे करें, है ना। बाद में जब सेट को यूज़ करेंगे तो बार बार तो हम सेट के सारे कलेक्शन लिख के उसको यूज़ नहीं करेंगे ना, तो बस उसके एक नेम दे देंगे, सो दैट वी कैन एड्रेस इट प्रॉपरली इन फ्यूचर यूजेस। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज डिनोट अ सेट with a capital letter for all the time, okay। आप बिना डिनोट करे सेट को नहीं लिखेंगे, तो पहले सेट का एक नामकरण होगा। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल भी रखा था भावेल के लिए, पी रखा था, कैपिटल पी प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के लिए रखा गया था, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक तो आ गया कि सेट के मेंबर्स के बारे में, सेट का मेंबर्स बिलोंग, अगर सेट को बिलोंग करते हैं वो क्या है, वगैरह वगैरह हम डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, है ना। हम डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। तो ये हम सेट तो बना दिए, सेट का नेम भी रख दिए, है ना। वी मेड ए सेट, हम एक सेट मालूम है सेट क्या है ना। और हम सेट को डिनोट भी कर दिए, डिनोट अ सेट। हम सेट के अंदर के एलिमेंट भी पता कर लिए, क्या क्या एलिमेंट है ना। recognized the elements of set, हमने सेट के एलिमेंट्स को रिकग्नाइज भी कर दिए
और आइडेंटिफाई, जो भी बोलो, आइडेंटिफाई भी कर दिए। लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि सेट को रिप्रेजेंट करना, सेट को रिप्रेजेंट भी करना है ना, सेट को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ए सेट। मतलब आप तो बस सेट का नेम और बोल दोगे कि वार्ड, मतलब वार्ड में बोल देंगे कि ये एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा, ये नहीं करेगा। ऐसे बहुत लंबा जाएगा, लंबा खींचेगा अगर लिखोगे तो पूरा सेट को। तो ऐसे नहीं लिखते हैं हम, दो डिफरेंट वेज होते हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बीट वन उसका है जो कि ये बोलते हैं हम रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, या फिर हम उसको और भी बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, या फिर हम उसको ये भी बोलते हैं टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड। ओके, याद रखो ये तीनों सेम चीज़ें हैं। एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, एक है रोस्टर मेथड, उसको ये भी बोला जाता है लिस्टिंग मेथड, उसको ये भी बोला जाता है टैबुलर मेथड। और जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ओके, तो पहले तो हम रोस्टर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेट बिल्डर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, तो पहले चलो हम रोस्टर मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग द रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ओके, रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, and there is a reason why we call this listing method, tabular method also. In this method, okay, we list all the elements of a set, we list all the elements of a set within curly braces है ना, within curly braces है ना, कर्ली ब्रेसेस को अंडरलाइन करो, विद इन कर्ली ब्रेसेस, ऐसा होता है, दिखता है ऐसा है ना, कर्ली ब्रेसेस, एंड सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉमास है ना, सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉमास, बाय कॉमास है ना, बाय कॉमास। ओके, तो देख लो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट को हम कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स को एक दूसरे से कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना। अगर भी इज सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप ज़रा देखो कि हम इसको सेट बिल्डर मेथड में सॉरी रोस्टर मेथड में हम इसको कैसे लिखते हैं है ना। तो कैसे इसको रोस्टर मेथड में लिखा जाता है कि v इज इक्वल टू कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा, क्या रहेगा, इस v सेट का जितने सारे एलिमेंट्स सब इसके अंदर हम कॉमा 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 द्वारा सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे कि a, e, i, o, u, ऐसे हम लिखते हैं है ना। तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कॉर्ली ब्रेसेस यूज़ करना कंपलसरी है। आप ऐसे आप कभी ऐसे मत लिख देना है ना। ये आपका कलेक्शन, ये आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये रोस्टर मेथड नहीं है। रोस्टर मेथड के लिए आप तो सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ करेंगे। आप ना तो ओपन ब्रेसेस, जैसे कि ये ओपन ब्रेसेस को बोलते हैं, ओपन ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ना तो आप क्लोज ब्रेसेस भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आप ऐसे भी नहीं करेंगे, AEIOU, ऐसे भी आप नहीं करेंगे है ना, ये भी गलत तरीका है। रोस्टर मेथड ऐसे नहीं कहता है। रोस्टर मेथड में आपको क्या करना होता है कि आप कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर सब कुछ सारे एलिमेंट्स को रखना होता है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जैसे कि जैसे कि ये भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, द सेट ऑफ है ना, ये दे रखा है ये एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 है ना। नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर 42 को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब 42 जिन नेचुरल नंबर के द्वारा डिविजिबल है उसको आपको क्या करना है, लिस्ट करना है, मतलब एक रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट करना है। तो 42 का क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 22। अब ये सारे एक एक करके इस सेट के एक एक मेंबर है ना, इस सेट के एक एक मेंबर है, या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हो, या फिर कलेक्शन, या फिर एलिमेंट्स, मेंबर्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो है ना।
तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। देखो जैसे कॉमा यूज़ किया गया है, कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स को लाके कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिए। तो ये मेरा बन गया सेट का रिप्रेजेंटेशन। ये सेट को मैं अगर ऐसे कहीं पर लिख दिया हूँ, अगर मैं यहीं ऐसे ही लिखा हूँ कहीं पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 6 7 14 21 42, तो बस आप बोल सकते हो कि येस दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। आप बोल सकते हो आराम से, है ना। मतलब ये होता है रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, है ना। और दूसरा पॉइंट में आता हूँ, एक चीज़ में आता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट। मैं पर लिख देता हूँ कि क्या है कि इन रोस्टर मेथड order of listing of elements doesn't matter तो इसका मतलब what it means is, आप एक रोस्टर मेथड में ऑब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में लिस्ट किए हैं ये मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर मैं एक सेट बनाऊं, ये जो कि सेट ऑफ वावल्स है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, ये सेट जो है, ये सेट भी बिल्कुल वही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस भी में क्या रखे हो, पहला वाला मतलब सेट में क्या रखे हो, इक्वल सिटी, पहला वाला सेट में उनको ऐसे अरेंज किए हो और दूसरा वाला सेट में दूसरे में अरेंज किए हो। सो कौन से ऑर्डर में आप एलिमेंट को लिस्ट किए हो, कौन से ऑर्डर में एलिमेंट्स ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इट सिंपली डजंट मैटर। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 1 2 3, दिस सेट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 1 3, मतलब कौन से ऑर्डर में आप एलिमेंट रखे हो ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा बात आते हैं, तो यहाँ पर देख लो नोट में लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, ये मैटर नहीं करता है। दस द अबव सेट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड आज दिस। और जो सेट हम अभी डिस्कस किए उसी सेट को उसने क्या किया, बस उल्टा पुल्टा करके नंबर्स को लिखा है और बोल दिया है कि हाँ ये दोनों सेट सेम है। सही बात है, सेट में एलिमेंट को ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। तो समझ आया मेरी बात? ओके नाउ ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, सेकेंड सी देख सकते हो, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। तो जितने ऑड नेचुरल नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 2 2 ऐड करते चलो, नहीं ये तो ऐड कीप ऑन एडिंग टू वन ऑड नेचुरल नंबर नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं क्या किया हूँ, 1 3 5 के बाद 3 डॉट्स दिए हूँ। और ये 3 डॉट्स क्यों दिए हूँ, इसका रीज़न क्या है। अब देख लो, एक बात है कि कितने दुनिया में ऑड नेचुरल नंबर है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है ना। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर अगर दे दूँ, जितना भी बड़ा हो, हाउ एवर बिग द ऑड नेचुरल नंबर इज, जस्ट ऐड 2 to it and you will get the next odd natural number। तो इसका मतलब है there is no last odd natural number, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर देयर। सो हम तो सारे के सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रख सकते, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, एटलीस्ट पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर लिख देंगे, उसके बाद है ना कम से कम 3 डॉट्स तो दिया कीजिए, कम से कम 3 डॉट्स दिया कीजिए। ऐसे कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि आपने, हमें पैटर्न से मालूम चल जाएगा। इसका कैसे मालूम चलता है ऑड नेचुरल नंबर है, पैटर्न से। इसका जो पैटर्न है ना, जिस पैटर्न में आप लिखे हो, इस पैटर्न से तो पक्का चल जाता, मालूम चल जाता है कि हाँ ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है। और डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है कि देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। फिर ये वाले नोट को जरा ऑब्जर्व करो, ये वाले नोट में आपको क्या दे रखा है। तो इस वाले नोट को मैं आपको करके दिखाता हूँ, डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो याद रखो, नोट में लिखो कि इन रोस्टर मेथड वन एलिमेंट is never repeated,
रिपीटेड, इज नेवर रिपीटेड, है ना। तो रोस्टर मेथड में हम कभी भी कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं लिखते हैं ना। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल लेट मी से कि ए इज ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक, है ना। तो हमारे पास एक वर्ड है बुक, और इस वर्ड के सारे लेटर्स को लेके एक सेट बनाना है। और इस वर्ड में आपको कितने लेटर दिख रहे हैं? आपको शायद आपको 4 लेटर दिख रहे होंगे ना, लेकिन मैं सेट बनाऊंगा इसमें 3 ही एलिमेंट होंगे। आप देख सकते हो कैसे। मैं इसके अंदर रखूँगा BOK बस। देखो इस वर्ड में तो ओ 2 बार है ना, ओ हैज़ बीन यूज्ड ट्वाइस, लेकिन सेट के अंदर व्हेन वी पुट इट एज एन एलिमेंट इट मस्ट नेवर बी रिपीटेड। तो ओ को अब एक ही बार लिखेंगे, 2 बार है लेकिन आप एक बार ही लिखेंगे। 1000 बार होगा तो भी एक एलिमेंट को एक ही बार रोस्टर मेथड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दो। हाँ, यहाँ पर ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। ये सेट जो है OBK भी वही है, KOB भी वही है, ये सब एक है ना, ये सब एक है। तो आप देख लो कौन से ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा मैटर नहीं करता है। दूसरा, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूज नहीं होता है। नो एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड फॉर मोर देन वंस। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं सेट बिल्डर मेथड। ओके, तो सेट बिल्डर मेथड में आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ चीज़ क्या है। तो आप लोग शायद ये पूरा समझ गए। ओके, तो अगर समझ गए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, जिसको हम जैसे हर सेट को पहले आप डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर उसको एक नेम देते हो, मतलब एवरी सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर फर्स्ट, ऑलराइट। तो सपोज ए इज सेट, कैपिटल ए इज सेट की सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और मेरा आपको सवाल है कि ये सेट को हम रोस्टर में कैसे लिखें। बता सकते हो क्या इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? क्या इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? बता सकते हो क्या? देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सारे को तो हम लिस्ट करके कॉमा के द्वारा नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट पहले 3 नेचुरल नंबर लिख देते हैं, उसके बाद हम डॉट 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 दे देते हैं। तो इससे ये मालूम चल गया कि हाँ, इस पैटर्न से हमें ये मालूम चल गया कि हम 1 से लेके आगे आगे नेचुरल नंबर्स तक इस सेट में हैं, है ना। तो मैंने इस सेट का नाम ए रखा हूँ, आप इसका नाम एन भी रख सकते हैं, जो कि हम यूजुअली रखते हैं, है ना। नेचुरल नंबर सेट का नाम हम कैपिटल एन हमेशा रखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सेट बिल्डर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, है ना। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने पहले आपको NCERT का डेफिनेशन दिखाता हूँ। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements, let me just adjust its ओके, हाँ। तो आप ऑब्जर्व करो क्या लिखा है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। ओके, तो यहाँ पर जो सिंगल लिखा है, आप इस सिंगल के जगह यूनिक भी लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि देखो, जैसे भी हमें मालूम है कि कोई भी सेट जब हम बनाते हैं ना, जैसे कि एक सेट में बना रहा हूँ, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। जैसे कि मैं सेट बना रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका मतलब जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये सेट हमें रोस्टर मेथड में लिख के दिया है, और हमें मालूम नहीं है कि ये सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है या कुछ भी, हमें मालूम नहीं है ना। हम बस सेट ऐसे दे रखा है, तो हमें इस सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखना है ना। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम ढूंढेंगे ना, वी विल फाइंड यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ सेट एन ओनली। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी
common property shared by elements of n only, है ना। आपको क्या करना होगा कि n के जो एलिमेंट्स लिखा गया है आपको इनके यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है जो कि सिर्फ और सिर्फ n के अंदर वाले एलिमेंट ही शेयर करते होंगे। बाहर के n के बाहर, इस सेट के बाहर जितने सारे एलिमेंट है उनमें से कोई भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ऐसा आपको एक प्रॉपर्टी ढूंढना है ना। जैसे कि और उसे ढूंढने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि एलिमेंट्स कौन से पैटर्न में लिखे गए हैं ना, कौन से पैटर्न में लिखे गए हैं, है ना। तो यूनिक का मतलब समझते हो कि सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट्स ही यही एलिमेंट्स ही सिर्फ एन के अंदर वाले एलिमेंट्स से उस प्रॉपर्टी को शेयर करते हों, बाहर वाले कोई शेयर ना करते हो, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यह सब नेचुरल नंबर्स है, ये सब नेचुरल नंबर्स है ना। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ इनका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी इंटीजर है? क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैपिटल एन आर इंटीजर्स? क्या ये उनका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी होगा? ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी होगा, लेकिन यूनिक प्रॉपर्टी होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं खाली इंटीजर बोल दूँ कि सेट एन के अंदर वाले एलिमेंट्स इंटीजर है, अगर ऐसा बोल दूँ, मैं अगर आपको ये बोलूँ सेट एन के अंदर वाले एलिमेंट इंटीजर है, तो ये यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि -1 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन वो तो सेट एन में नहीं है। तो मैं आपको क्या बोला, आपको ऐसे प्रॉपर्टी ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ सेट एन के अंदर वाले एलिमेंट ही शेयर करते हो, बाहर वाले कोई नहीं शेयर करते हो। सो -1 यहाँ पर शेयर कर रहा है ना, 0 भी शेयर कर रहा है, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन ये तो इस सेट में नहीं है। तो आपको यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है। तो यहाँ पर यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी आप देख सकते हो क्या है कि दे आर नेचुरल नंबर्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दे आर व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना, सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। अच्छा, 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना। 0 इज़ न्यूट्रल, 0 इज़ न्यूट्रल। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, 0 इज़ न्यूट्रल। ठीक है, 0 को ना हम पॉजिटिव मानेंगे ना हम नेगेटिव मानेंगे, 0 इज़ न्यूट्रल। तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोल सकते हो, या फिर आप नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। तो ये तो हमें मिल गया क्या, यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एन। लेकिन इसके बाद आता है कि इसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। तो हम ऐसे करते हैं, मैं पहले इसको लिख के दिखाता हूँ, फिर बहुत सारे आप करेंगे एक एक करके। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे n इक्वल्स x सच दैट x इज इक्वल टू, और डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पर n x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल n, है ना। तो इसका मतलब है, हाँ देखो मैं इसका नाम जानबूझकर अभी n नहीं रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ, क्योंकि आप बोल दोगे सर वही n लिखते हैं, वो यहाँ पर n लिखते हैं ना। देखो n क्या है, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डिनोशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का नेम हमेशा हम कैपिटल n रखते हैं। ये स्टैंडर्ड डिनोशन है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं रखा जाता है ना। तो अभी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ, है ना। और इसका नाम हम ए दिए हैं, तो ये लिख देता हूँ। अभी इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, जो हमने शुरू में लिखे हैं ना, जो हम शुरू में लिखे हैं कि x, ये x क्या है पहले आपको जान लेना जरूरी है। व्हाट इज x हियर, है ना। देखो ये x क्या है, ये x क्या है, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। x क्या करता है, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। x रिप्रेजेंट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। x क्या करता है, सेट ए के ईच एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब x बोले तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सेट ए के जितने सारे एलिमेंट है, सारे के सारे x के द्वारा रिप्रेजेंटेड है ना। x सच दैट का मतलब हिंदी में क्या होता है, ऐसा है कि, है ना। x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है ना। ये नेचुरल नंबर सेट को बिलोंग करता है, लिखे हैं, मतलब x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, मतलब x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है ना। दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं अगर एक सेट B बनाऊँ,
सपोज उसके अंदर मैं एलिमेंट रखूँ 1 2 3, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले तो आपको क्या, आपका पहला काम क्या होगा कि इस सेट के अंदर जो तीनों एलिमेंट है इनका एक यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना होगा, है ना। यूनिक भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, है ना। कॉमन मतलब वो प्रॉपर्टी इन तीनों के द्वारा भी शेयर होना चाहिए, और दूसरा क्या, यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसे हमें प्रॉपर्टी ढूंढना है जो कि सेट बी के अंदर वाले एलिमेंट ही सेटिस्फाई कर रहे हो, सेट बी के बाहर जितने एलिमेंट है उनमें से कोई भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो आप देख सकते हो सेट बी के अंदर सारे जो हैं सारे आर नेचुरल नंबर्स, हाँ, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3। आप अगर खाली नेचुरल नंबर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर तो इन्फाइनाइट नंबर है, इन्फाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर से, लेकिन आप तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 रखे हैं। तो अगर खाली नेचुरल नंबर लिख देंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा, क्या हम सोच लेंगे कि नेचुरल नंबर तो 4 भी है, तो 4 भी इस सेट को बिलोंग करता है, लेकिन जबकि 4 इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो हमें दो प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रहा है। एक है इट हैज़ टू बी ए नेचुरल नंबर एंड हैज़ टू बी फ्रॉम 1 to 3, है ना। तो इसको हम कैसे इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे वो पहले आपको देख लो। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब है x, पहला तो x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। हाँ, x क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। x क्या है, x इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाओ, x उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी x तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड देखो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉमा दे के हम जब लिखते हैं इसका मतलब ये एंड होता है, बोथ दिस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी दोनों हैज टू बी सेटिस्फाइड, बोथ हैव टू बी सेटिस्फाइड। तो एक तो x को एक नेचुरल नंबर होना मांगता है, दूसरा बात है कि x को 1 से 3 के बीच में रहना है ना, 1 से लेके 3 तक रहना है, 1 से लेके 3 तक रहना है, 3 के बाद वाले नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, है ना। तो ईयर जो लिखे हम 1 लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब है x 1 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, एंड x लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब x 3 भी हो सकता है, 3 से छोटा भी हो सकता है। और आप इसको आप देखो ना, ये जो लिखे हो ना, ये जो लिखे हो, ये जो सेकंड वाला लिखे हो, ये सेकंड वाला ये पूरा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, ये आपका मर्जी, आप ऐसे भी लिखो तो मतलब सेम है। बताता हूँ क्यों मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखे हो, x 1 लेस देन और इक्वल टू x, मतलब 1 को इंक्लूड कर रहे हो और x 1 है और 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है ना। बट यहाँ पर क्या लिखे हो, x इज लेस दैन 4, मतलब x 4 से छोटा नेचुरल नंबर है तो 3 तक ही आएगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। अब लेस दैन और इक्वल टू 4 नहीं लिखे हो तो 4 इसमें नहीं आएगा। तो दोनों में से जो भी लिखो करेक्ट है, दोनों में से जो भी लिखो करेक्ट है। लेकिन x लेस दैन 5 अगर लिख दोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 से छोटा 4 भी एक नेचुरल नंबर होता है जो कि सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो ये गया पूरा का पूरा आपका सेट बिल्डर मेथड में, मेल मेथड का इंट्रोडक्शन। तो हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, एक के बाद क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिलेक्ट सेट है इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं एलिमेंट रख रहा हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो हाँ, तो इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप आपका क्या है कि इन सारे एलिमेंट, जो 4 एलिमेंट इसके अंदर है, मैं जानबूझकर 4 रखा हूँ, वो 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, जो भी दे सकता है। हमें ऐसे एक यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है ना, यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट ही शेयर करते हो। सेट ए के बाहर अगर कोई एलिमेंट है, जैसे कि बाहर से एक एलिमेंट अगर लाऊं 1 उस प्रॉपर्टी को शेयर ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट शेयर करते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताया था शुरू में, आपको क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। और अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करें तो यू कैन क्लियरली सी कि हर एलिमेंट के जो न्यूमरेटर है वो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते जाते हैं। देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, है ना। 1 से लेके जो न्यूमरेटर सारे हैं 1 से लेके 4 तक कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं।
और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 बड़े है ना। द डिनोमिनेटर इज 1 ग्रेटर देन द न्यूमरेटर इन ईच एलिमेंट। अब देख लो इस एलिमेंट में 2 1 से एक बड़ा है, इस एलिमेंट में 3 2 से एक बड़ा है, इसमें 4 3 से एक बड़ा है, 5 4 से एक बड़ा है ना। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि न्यूमरेटर जो है, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो जो न्यूमरेटर्स हैं दे आर नेचुरल नंबर्स, और वो 1 से लेके फ्रॉम 1 to 4 है, फ्रॉम 1 to 4 जो न्यूमरेटर्स है ना। और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स 1 प्लस न्यूमरेटर है ना, 1 प्लस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, आपको डिनोमिनेटर यहाँ पर मिल जाता है। तो इसको आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर मेथड में अच्छी तरह से लिखना है। तो पहले हमें क्या करना है कि जैसे हम करते आए वैसे ही करना है। हमें लिखना है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, और x क्या है, x here represents each and every element of set A, remember x here represents each and every element of set A। तो x such that x is equal to, हाँ आप देख लो कि ये एलिमेंट सारे दिखते कैसे हैं, ये एलिमेंट जैसे दिखते हैं आप देख लो n अपॉन n प्लस 1, मतलब कोई भी नंबर प्लस कोई भी नंबर अपॉन दैट नंबर प्लस 1। आपको देख रहे होंगे न्यूमरेटर में नंबर है, डिनोमिनेटर में नंबर प्लस 1 है ना। लेकिन ये तो ऐसे तो लिख देना तो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि n कुछ भी हो सकता है, n एक रियल नंबर भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं n के जगह 0.5 रख दिया तो क्या 0.5, अगर मैं n के जगह 0.5 रख दिया है ना, क्या 0.5 बाई 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5, क्या ये इस सेट में है, क्या नहीं है ना। तो इतना लिख देना इनफ नहीं है, ये प्रॉपर्टी को आधा दिखाता है। तो आपको ये भी लिखना है कि n इज ए नेचुरल नंबर, और यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता है बात, क्योंकि अगर आप खाली ये लेके छोड़ दिए तो भाई ऐसा तो 6 भी एक नेचुरल नंबर है, नो न्यूमरेटर है 6 भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर 6/7, या 6/7 इसमें है नहीं है। तो उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है, बस लास्ट एक है बाकी। क्या आप लिखना चाहेंगे कि 1 लेस दैन और इक्वल टू n लेस दैन और इक्वल टू 4, मतलब जो न्यूमरेटर वाला जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, और वो 1 से लेके 4 तक है। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 सारे न्यूमरेटर्स है ना, 4 से बड़ा नेचुरल नंबर न्यूमरेटर में नहीं है ना। तो ये हो गया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, क्योंकि 5 से छोटा नेचुरल नंबर तो 4 ही है ना, तब तक ही आएगा। तो ये हुआ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब एक सेट बिल्डर मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है ना। तो आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस नॉट, हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे डायरेक्टली वो नहीं देगा कभी, 1 4 9 16 25 ऐसा आपको दे रखा है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये लिखना है कि आपको यहाँ पर लिखना है कि सेट ए को सेट बिल्डर में लिखना है। उसके लिए आप क्या करो, ये सारे एलिमेंट्स के एक यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो है ना, यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। तो यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगा आप जरा देख सकते हो। इसमें क्या है कि पहले यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, पहले आप यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, और जब हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें मालूम चल रहा है कि ये जो पहला नंबर 1 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर है, तीसरा नंबर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, कि 5 का स्क्वायर है, ऐसे करके सब है ना, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे करके हैं। मतलब 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स इसमें हैं है ना। तो बस हमें यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गया। अब उसको हम क्या करेंगे, सिम्बॉलिकली बस लिख देंगे, काम खत्म है ना। तो यही करते हैं कि हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, और x क्या करेगा, इन सारों को रिप्रेजेंट करेगा है ना, इनके लिए वकालत करेगा। ये x इनके लिए जैसे बोलते हैं ना वकालत करना, मतलब यू हायर ए लॉयर इफ यू वांट समबडी, इफ यू वांट टू डिफेंड योरसेल्फ देन यू हैव टू हायर ए लॉयर और नॉट। सो हम तो यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक सारे के सारे लिख के उनको नहीं लिख सकते कि ये लिखेंगे 1 ये 1 का स्क्वायर है, 4 ये 2 का स्क्वायर है, 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, हमें तो एक शॉर्टकट चाहिए ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि x ले जाते हैं, सपोज x इनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N,
एंड 1 लेस दैन इक्वल टू एन लेस दैन इक्वल टू 5। तो ऐसे अगर आप लिख लेते हो ये तीनों तो आपका काम खत्म हो जाता है। पहले तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा n का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक रहना चाहिए। आप चाहो तो लेस देन 6 भी लिख सकते हो, कोई नहीं, एक ही बात है। और x क्या होगा, उस n का स्क्वायर होगा। फिर से सुनो, पहले तो n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक कौन कौन नेचुरल नंबर है, n क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 से 5 लेकर 5 तक n नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5। और x बेटा क्या है, x यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सेट ए का ओरिजिनल सेट का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x क्या है, n का स्क्वायर है ना। तो जब n 1 लेंगे x क्या होगा, उसका स्क्वायर 1। n जब t 2 लेंगे x क्या होगा, उसका स्क्वायर 4। 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 25। तो ये सारे एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक वे हुआ। दूसरा अगर हम डिस्कस करें कि मैं आपको बुक से ही दिखाता हूँ, बुक से ही दिखाता हूँ। ओके, तो आप जैसे देख लो यहाँ पर ये आपको एक सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है और पूछा कि इसका सेट बिल्डर मेथड इनमें से कौन सा है। देख सकते हो ये है उसका सेट बिल्डर मेथड, है ना। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। देखो इसमें प्रिंसिपल के सारे लेटर्स हैं। तो अब आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल में आपका आई देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। सॉरी मैं सेट बिल्डर बोल दिया शायद गलती से, रोस्टर में। तो रोस्टर में कैसे इसको लिखते हैं बताता हूँ। रोस्टर में कैसे लिखेंगे कि हाँ मतलब सॉरी मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है रोस्टर में और यहाँ पर आपको दे रखा है उसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, दोनों सेम सेट है, बस यहाँ पर उसका रोस्टर दे रखा है और यहाँ पर उसका सेट बिल्डर दे रखा है। तो आप अभी तो नहीं बोलोगे कि सर इस वर्ड प्रिंसिपल में आई 2 बार है, आप आई को एक ही बार लिखे हो। कि मैंने आपको अभी बताया कि रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट करना गलत है। तो जैसे कि पी 2 बार है लेकिन हम उसको इसमें एक ही बार लिखेंगे रोस्टर मेथड में, है ना। ओके, तो ये गया। आप खुद एग्जाम्पल 5 कर लीजिए और बाकी एक लास्ट बचा वो मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहीं पर सेशन आज का ख़त्म करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो जो लास्ट बातें बोलना चाह रहा हूँ कि हम कुछ कॉमनली, है ना, कॉमन नेम्स ऑफ सेट्स दैट वी यूज़ इन मैथमेटिक्स में कौन से सेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी आप ध्यान लेना ज़रूरी है। पहला है आपका कैपिटल एन, जो कि है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कैपिटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टैंडर्ड है भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप कोई मत बोल देना कैपिटल एन सर मैं अगर कैपिटल एन को लिख दूँ सेट ऑफ इंटीजर्स तो होगा। देखो थ्योरेटिकली तो गलत नहीं है, लेकिन हमने ना इसको एक नाम दे चुके हैं ऑलरेडी, हमेशा यूज़ करते हैं ना इसको एड्रेस करने के लिए, हमेशा कैपिटल एन लिखते हैं। तो आप इसको जेड नहीं लिख सकते, जेड इज़ रिजर्व फॉर इंटीजर्स। ओके, आप इसको कुछ और नहीं लिख सकते, कैपिटल एन ही लिखो। तो अगर मैं इफ़ आई से कि x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इसका मतलब क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, x इज़ ए नेचुरल नंबर, तभी तो वो कैपिटल एन सेट को बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर है इसीलिए तो बिलोंग कर रहा है। उसके बाद दूसरा आता है जेड जो कि है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड जो कि है सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स में आपके 0 आता है, 1 आता है, फिर -1 आता है, प्लस और -1, 2 आता है, फिर -2 आता है, 3 आता है, फिर -3 आता है, डॉट। ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है, 0 से पहले इन्फानाइट, 0 से बाद में भी इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है। तो इनको हम जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह हम और भी यूज़ करते हैं, डब्ल्यू यूज़ करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए। और ध्यान दो यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 डॉट, है ना। यहाँ पर भी इन्फानाइट नंबर ऑफ होल नंबर होते हैं,
बस सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बस एक जीरो अगर आगे मतलब ले आए, इन्वॉल्व कर लें सेट में, वो बन जाएगा हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। ये आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। फिर आते हैं जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो आप देख सकते हो जेड प्लस को हम ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो भाई, आप जेड प्लस में वही सारे इंटीजर्स रखेंगे जो कि, है ना, मैं पॉजिटिव लिखा हूँ, अब कुछ और नहीं पढ़, हाँ, हम यहाँ पर जेड प्लस में वही सारे एलिमेंट रखेंगे जो कि मतलब वो इंटीजर भी है और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 यही तो है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, यही तो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। देखो जीरो तो बोल रखा था कि आपको ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। उसके बाद कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए, सॉरी आई मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए, है ना, कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। फिर हम क्यू के ऊपर बार अगर देते हैं तो दैट होता है सेट ऑफ ई रैशनल नंबर, सेट ऑफ ई रैशनल नंबर्स। ओके, सो ऐसे करके हम सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सारे सेट्स का सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड वगैरह वगैरह समझा दिया। और उसके बाद मैंने आपको जो मैथमेटिक्स में जो कॉमनली यूज़ होते हैं जो सारे सेट्स, उनका भी एग्जाम्पल दे दिया। और आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम कल पढ़ते हैं एम्प्टी सेट वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।